वेलकम ऑल। तो आज का सेशन रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जेईई मेन 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस, करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस हम लेंगे जो सिर्फ यही चैप्टर के थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। और वन मोर थिंग, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। लेट्स बिगिन। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? If C is a point at which Rolle's theorem holds the function in the interval 3 to 4, then f double dash C is equal to what? So let's do it. So function is, let me write, log x square plus alpha minus log 7x. Okay, so let's find derivative. So f dash x is equal to, so what is the derivative? 1 upon x square plus alpha. Derivative of log is 1 upon x square plus alpha, and the derivative of bracket 2x, same way log 7x, 1 upon 7x into 7, so it is 1 upon x. Okay, now if you apply the Rolle's theorem, then derivative f dash is always 0. So f dash C is 0 according to Rolle's theorem. So we will be having 2c upon c square plus alpha minus 1 upon c is equal to 0. Okay, let's further simplify. So after taking LCM, we will be having 2c square minus c square plus alpha upon c square plus alpha is equal to 0. So we will be having c square minus alpha is equal to 0, c square is equal to alpha. Okay, they are asking for f double dash c. They are asking for f double dash c. But before that, let's find the alpha. So alpha कैसे मिलेगा? So Rolle's theorem says that f of 3 is equal to f of 4. ठीक है, तो f of 3 and f of 4 की वैल्यू फाइंड करते हैं. So we will be having log e, it is 3 square 9 plus alpha upon 7 into 3 is equal to log e 4 square 16 alpha 7 into 4. Okay, log gone, 9 plus alpha upon 3, 7 also gone, 16 plus alpha upon 4. After taking LCM, 9 4s are 36 plus 4 alpha is equal to 16 3s are 48 plus 3 alpha. So we will be having alpha is equal to 48 minus 36, 12. Okay, so we will be having c square is equal to 12. Okay, the demand for f double dash c. So once again let's find the derivative. So f double dash. Okay, first of all let me write f dash x. So f dash x is equal to 2 times x upon x square plus, you can put the value of alpha 12 minus 1 upon x. Okay, now let's find double dash. So double dash x, so g as it is, derivative of f minus f as it is, derivative of g upon g square minus derivative of 1 upon x, it is 1 upon x square. Okay, so f double dash c, I am replacing this x by c, so I am having 2 times c square plus 24 minus 4 times c square upon c square plus 12 whole square plus 1 upon c square. Now 2c square minus 4c square, 2c square minus 4c square, 2 times c square, and the value of c square is 12. Okay,
plus 1/12. Okay, as you all know, 24 minus 24 it is 0. So our final answer is what? 1/12. F double dash C is what? 1/12. This is our final answer. You can see here. Option A is our answer. Without wasting the time, let's move on the next question. And the question 2 says that let the normal at point P, let the normal at point P on the curve intersect y-axis at some point 0,3/2, and if m is the slope of the tangent. सर कुछ समझ में नहीं आया. Let me draw the diagram. ठीक है, रफ स्केच है ये. Let me take one curve. They said normal, let the normal at point P on the curve. This is the point P. ठीक है, normal. Let me take the normal. Yes, this one is a normal. Y एक्सिस को कट कर रहा है 0,3/2 पे. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. एंड इफ m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, ये देखो यहां से एक टेंजेंट बना, ये स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप लेट्स से m. ठीक है, सो दे सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड m. ओके, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं. कौन सा ले? वी कैन से x1 y1. ओके, so first of all let's find the derivative of the given function. So derivative of the given function is 2 times y into, I am writing dy by dx minus 6x plus dy by dx plus 10 is equal to 0. Oh sorry, derivative of 10 is 0. So what I have, dy by dx is equal to 6x upon 2y plus 1. Okay, you can say this is the m. Okay, now this dy by dx at x1 y1, dy by dx at x1 y1 is equal to 6x1 upon 2y1 plus 1. Okay, okay, this is the slope m. Now let's find the slope of the point 0,3/2 and x1 y1. Means मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर रहा हूँ. When 2 points are given, at that time we can find the slope. और वो स्लोप किसका मिलेगा? नॉर्मल का मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 मीन्स के y1 और ये 3/2. ठीक है, ये दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2. यहाँ पे लिख देंगे x1 माइनस 0. ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया. नाउ एज वी ऑल नो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है. सो क्या करेंगे हम? 6 टाइम x1 अपन 2y1 प्लस 1 इंटू y1 माइनस 3/2 अपन x1 is equal to what? -1. As we know, slope of tangent and slope of normal multiplication is always -1. Now x1 cut. x1 cut. So we are having 6y1 minus 3 3s are 9. मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, 6y1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 2y1 यहाँ पे आया. सो माइनस 2y1 माइनस 1. So we will be having 4y1 is equal to 8, y1 is equal to 2. ठीक है, ये हो गया y1 is equal to 2. उन्होंने फाइंड क्या करने को बोला है? उन्होंने बोला है m ढूंढो. ठीक है, मिल जाएगा m. y1 तो मिल गया, x1 फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे x1? ओरिजिनल जो भी इक्वेशन, कर्व की जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू डाल दो तो आपको x1 मिल जाएगा. तो 2 स्क्वायर माइनस 3 टाइम 2 स्क्वायर, और सॉरी x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी. ठीक है, प्लस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो 12 प्लस 4
just a minute, 2 square 4 minus 3x1 square, because x1 y1 is on the curve. So हमने क्या किया, y1 डाला तो कर्व अपने को x1 की वैल्यू दे देगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो 16/3 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर. 16/3 is equal to x1 square. I think I have made some mistake. Let me check, because x1 square is 16/3. Yes, here is a mistake. 4y1 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 8y1. Okay, 2 लेफ्ट हैंड साइड भेजा, 6 + 2 8y1. So little bit correction here. y1 is equal to 1. ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे करेक्शन करते हैं. y1 की वैल्यू है 1. ठीक है, लेट मी करेक्ट, जस्ट अ मिनट. होती है भाई, मिस्टेक होती है. तो ये रहा y1 1, तो ये हो गया 12. सो x1 स्क्वायर आ गया 4. ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. दे सेड मोड ऑफ m. ठीक है, तो इन मोड 6x1 अपन 2y1 प्लस 1, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस और माइनस. ओके, एंड y1 इज 1. सो मोड है तो प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो योर आंसर इज 4. 4 इज योर आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 3. दे सेड f of x इज इक्वल टू x cos इनवर्स माइनस साइन मोड x. ओके, बहुत ईजी है. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो cos इनवर्स है, अगर उसके अंदर माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, दैट वुड बी रिटर्न एज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ओके, सो वी विल बी राइटिंग पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन मोड एक्स. नाउ ये कॉस इनवर्स और साइन तो रिमूव नहीं होगा. सो कैसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर देते हैं बाई π/2 माइनस साइन इनवर्स. ठीक है, चलिए, तो ये कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ पाई माइनस π/2 रिमेनिंग π/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स और साइन गया तो मोड एक्स. एक नंबर, एकदम सही है. देखिए, अब यहाँ पे अगर वैल्यूज को फिल्टर किया जाए तो हमारे पास है π/2 x प्लस एक्स स्क्वायर. सर एक्स स्क्वायर कैसे लिखा, तो आई एम कंसिडरिंग द केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. सिमिलर वे आई एम राइटिंग फॉर लेस देन 0. तो लेस देन 0 के लिए क्या लिखेंगे, π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मोड की वैल्यू माइनस एक्स. ठीक है, मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0. ठीक है, अब इस डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो f' इज इक्वल टू π/2 प्लस 2x एंड हियर π/2 माइनस 2x. ठीक है, सो इट इज क्लियर दैट के फॉर 0 टू इनफाइनाइट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाउंड किया है अप टू π/2. सो 0 टू π/2 में f' कैसा है, पॉजिटिव है, दैट्स वाई इंक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलर वे यहाँ पे f' लेस देन, मतलब यहाँ पे कौन सा पार्ट लेंगे, माइनस π/2 से 0. ठीक है, 0 से छोटा कहाँ तक, माइनस π/2, उसमें लेस देन है, दैट्स वाई इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. सो कौन सा ऑप्शन है चेक करिए, तो ये रहा अपना ऑप्शन डी, डिक्रीजिंग इन माइनस π/2 टू 0 एंड इंक्रीजिंग इन 0 टू π/2. अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेशन में बताइएगा, हेल्प करूंगा. क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका बोनस क्वेश्चन था. ठीक है, करेक्शन था, तो फुल मार्क्स मिलते अगर आप 2028 जनवरी इवनिंग सेक्शन में एग्जाम दिए होते. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं. दे सेड f ऑफ x, ये हम दो मेथड में करेंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक थोड़ा इजी शॉर्टकट मेथड. ऑलवेज शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे जेई में, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए. चलिए, f ऑफ x इज polynomial of degree 3. So traditional method, let us take ax cube plus bx square plus cx plus d is our polynomial. ठीक है, f of -1 is 10. ओके, ये रहा f of -1. सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए
प्लस बी माइनस सी प्लस डी, द वैल्यू इज 10। सिमिलर वे एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू -6। चलो इसको सॉल्व करके रखते हैं, शायद काम आ जाए। तो वी विल बी हैविंग 2b प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो b प्लस d इज इक्वल टू 2। ऐसे ही सॉल्व करके रख दिया, शायद काम आ जाए। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एफ ऑफ एक्स हैज क्रिटिकल पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू -1, मतलब कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करके रख देते हैं, सो इट इज 6ax प्लस 2b। नाउ क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या होता है कि एफ डैश -1 इज 0। चलिए वैल्यू डालते हैं, तो ये 3a रहेगा, ये -2b रहेगा, c को तो क्या फर्क पड़ेगा, तो 3a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो डबल डैश एफ डैश हैज क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1, मतलब एफ डबल डैश 1 0 रहेगा। ठीक है, तो यहां पे भी वैल्यू डालते हैं, तो 6a प्लस 2b। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मेरे पास कुछ ऐसा है कि 3 टाइम a इज इक्वल टू -2b। ठीक है, इसको उठा के यहां पे डाल देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू -4b प्लस सी, मतलब c इज इक्वल टू 4b। यहां से भी लिखते हैं कि d इज इक्वल टू 2 माइनस बी। सर ऐसा क्यों किया, अभी पता चल जाएगा। सो आई एम हैविंग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू -6 एंड वैल्यू ऑफ a इज वॉट -2b/3। b को एज इट इज रहने देते हैं। what is the value of c? It is 4b. and what is the value of d? It is 2 minus b. now this b gone, -2b plus 12b upon 3 is equal to -8. so ये हो गया -10b upon 3 is equal to -8। ठीक है, क्या किया एक बार वापस देख लीजिए। चलो सही है, तो b हो गया 24/10 विच इज 12/5। b की वैल्यू फाइंड की हमने। वापस कुछ गलती होगी क्योंकि ऐसे नंबर आए, मतलब सोच लेने का एक बार, कुछ तो लोचा होगा। तो देखो यहाँ पे एक लोचा है। क्या लोचा है? अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, 6 का 3 किया, तो ये 2b का b करना चाहिए था। दिस इज माय वंस अगेन मिस्टेक। ठीक है, तो चलो वापस मेहनत पहले से नहीं करनी पड़ेगी। तो छोटी सी गलती है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आंसर नहीं आएगा। चलिए, तो क्या कर रहा था, तो 2 से डिवाइड, सो 3 है, 2 से डिवाइड -b, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो 0। इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, 0, तो ये हो गया 3a की जगह पे -b -3b प्लस c, तो c हो गया 3b। ठीक है, क्वेश्चन में वैल्यूज डालते हैं। a की जगह पे क्या रखूंगा, -b/3, b एज इट इज। c के जगह पे क्या रखूंगा, 3b। d के जगह पे क्या रखूंगा, 2 - b इज इक्वल टू क्या है, -6। b कट। नाउ -b/3 प्लस 3b इज इक्वल टू -8। एलसीएम लेते हैं, 3 3 9, 8b/3 इज इक्वल टू -8। सो b क्या आया सर, -3 आया। अगर b -3 है, a क्या आएगा, -1 आएगा सर। c क्या आएगा, -9 आएगा सर। ठीक है, सो उन्होंने मांगा क्या है, लोकल मिनिमम मांगा है। लोकल मिनिमम मांगा है, आराम से मिल सकता है। डैश की वैल्यू जो थी उसको याद करिए, ये रहा डैश। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, a की वैल्यू हम रख देते हैं, तो -3x²। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, -6x, और c की वैल्यू क्या थी, -9। ठीक है, वैल्यूज डाल दिए। एक बार ध्यान से देख लेते हैं ताकि कोई लोचा ना हो। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगी,
एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, कहाँ पे लोचा है ढूंढ लो जल्दी से, मिला क्या? b की वैल्यू -3 तो ये 1 आएगा, +1 आएगा, सो +3. ओके, सो वी विल बी हैविंग x स्क्वायर माइनस 2x, 3 2 जा एंड 3. चलिए फैक्टर निकालते हैं, तो 3 1 जा x -3 x +1, मतलब कि x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 3, इन दोनों में से एक पे लोकल मिनिमम मिलेगा. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 2 है क्वेश्चन में, नो डाउट. एक क्रिटिकल पॉइंट x = -1 गिवन है ना, फिर भी हम चेक करेंगे. तो f" की वैल्यू क्या थी? 6 टाइम a, ओके 6x + 2 टाइम b, सो -6. वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे, -1 रखेंगे, 3 रखेंगे. जैसे ही -1 रखा -12 आया, 3 रखा 12 आया. ग्रेटर देन 0 मीन्स वी विल बी गेटिंग मिनिमा at x = 3. So this is our answer. X = 3 is our answer. Let's move on question number 6. A sphere. Okay, having radius 10 centimeter. ठीक है, अच्छा है, 10 centimeter radius था. Has a uniform thickness of ice around it. मतलब ये एक ice से ऐसा कवर है. ठीक है, मतलब जो रेडियस था वो रेडियस चेंज हो गई बिकॉज ऑफ दैट आइस, ऐसा समझ सकते हैं. ठीक है, सो न्यू रेडियस आई कैन से दैट 10 + x. ठीक है, ओके. नाउ वॉल्यूम की फॉर्मूला थी 4/3 पाई r³, बट हियर आई एम राइटिंग 10 + x³. डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dv/dt = 3 आगे आएगा, सो 3 3 कट 4 पाई 10 + x होल स्क्वायर एंड आफ्टर दैट 10 0 x का डेरिवेटिव dx/dt. नाउ द वैल्यू ऑफ dv/dt इज गिवन 50 एंड द थिकनेस ऑफ आइस इज गिवन बाय 5 सेंटीमीटर, सो 15 10 + 5 15. They said change in thickness dx/dt is what? So 50/4 pi 15 into 15 is equal to dx/dt. 5 3s are 10, 5 2s are 3s are 2 2s are. So our answer is 9/18. 1/18 pi is our answer. काफी easy sum था.